Here goes the poem. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? At last, by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly aunt to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would be paid it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. Says the ant to the cricket, I'm your servant and friend, but we ants never borrow, we ants never lend. But tell me, dear cricket, did you lay nothing by? When the weather was warm, quoth the cricket, not I. My heart was so light, that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say, go then, says the ant, to dance the winter away. Thus ending, he happily lifted the wicket, and out of the door turned the poor little cricket. Folks call this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs, and some have 2. Friends, this poem, as I told you, that such kinds of poems are not written by some person. So this is adapted from Aesop's fable. Okay, and the person connected the name with the folk stories. They are only the editors, you can say, or the collector of the story, but they are not the writer of the story. So this is adapted from Aesop's fable. Now, as I in the beginning of the first part of the video, a small or a brief explanation or central idea of the poem, but now I am going to explain it thoroughly. It is a story when, in the beginning, a young cricket who is very habitual to live the life in enjoyment, accustomed to sing. The line is here, friend, accustomed to sing. Accustomed to sing means he is habitual of enjoyment, enjoying life. यानी उसे जीवन में बस नाचने, गाने, मस्ती करने की ही आदत है. वही उसका रूटीन है. His routine is singing, dancing, etc. Nothing else. Through the warm, sunny months of gay summer and spring, or when he does these activities, कब वो ऐसा करता है? When the weather is very passionate, the weather is very happy, the weather is very favorable. यानी जब मौसम अनुकूल है, अच्छा है, गुड है, उस समय वो हार्ड वर्क करने के बजाय मस्ती करता है, एंजॉय करता है. लेकिन आफ्टर दैट बिगिन टू कंप्लेन, उस समय शिकायत करना शुरू कर देता है. व्हेन ही फाउंड, जब उसे ये पता लगता है दैट एट होम हिज कबर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर वाज कम. एक घर में तो कुछ है ही नहीं. एवरी वेसल इज एम्प्टी, नथिंग टू ईट, एंड द वेदर हैज चेंज्ड नाउ. Now the winter has come, the favorable weather has gone. जो अच्छा मौसम था वो तो चला गया. अब सर्दी का ऐसा मौसम आ गया है जब हम बाहर नहीं रह सकते, हमें अंदर बचकर रहना होगा.
पर अंदर रहने के लिए, हमें सरवाइव करने के लिए जो हमारी सेविंग्स हैं वो ही हमें सरवाइव करने में हेल्प करेंगी। लेकिन उन्हें हम कलेक्ट कब करते हैं? जो हार्ड टाइम्स की सेविंग है उन्हें हम गुड टाइम्स में जो है वो सेव करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जब गुड टाइम्स हैं, जब वर्क करने का टाइम है, जब हम काम कर सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, जब हम कहीं जा सकते हैं, जब हमारे पास फ्रीडम है कुछ करने की, तब हमें उस समय के लिए कलेक्शन करना होता है जब हमारे पास कोई हार्ड टाइम आए, जब हम बाहर ना जा सके, जब हम कुछ कर ना सके। लाइक जैसे अभी कोरोना काल में जो जब हम बाहर निकल सकते हैं, जब हमें छूट होती है, तो उस समय का इस्तेमाल करते हुए हम वो कलेक्शन करते हैं, उस समय के लिए कलेक्शन करते हैं, सेविंग करते हैं जब हम जिन दिनों में बाहर ना जा पाए। और जिनने सेविंग नहीं करी होगी, इमेजिन कीजिए कि सपोज 3 दिन बाहर जाने की छूट थी, उस समय हम 3 दिन घर में बैठे रहे, टीवी देखते रहे, बाहर नहीं गए, जो घर में था उसे हमने इस्तेमाल किया। फिर बाद में 2-3 दिन बाहर जाना मना हो गया, अब घर में कुछ है नहीं, बाहर जा नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो भूखा रहना पड़ेगा, और या फिर जो हमारे आस पड़ोस में कोई है उससे हमें मांगना पड़ेगा कि हम नहीं कलेक्शन कर पाए, वो खत्म हो गया है, हमारा पानी खत्म हो गया है, या हमारा जो है जो सामान था किचन में कुछ वो खत्म हो गया है, उसके लिए हमें उनसे मांगना पड़ेगा। तो वही स्थिति है कि जब हम वर्क कर सकते हैं उस समय अगर हम सेविंग नहीं करेंगे, अपने हार्ड टाइम के लिए कलेक्शन नहीं करेंगे, तो हमें हार्ड टाइम आने पे दूसरे के सामने हाथ फैलाना पड़ेगा और दूसरे से मांगना पड़ेगा। यही सिचुएशन जो पोएट है वो इस क्रिकेट के माध्यम से थ्रू दिस मीडियम हमारे सामने रखते हैं। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. बाहर सर्दी का मौसम है, बर्फ गिर रही है, पेड़ों पर बर्फ है, there is snow on the tree, there is snow on the ground, there is snow on each and every plant, everything is covered with snow. So now जब सब कुछ बर्फ से ढका है, तो बाहर भी इस क्रिकेट के लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं है। अब इसे चिंता होती है। नाउ द क्रिकेट गोज मैड, ओके, ही इज नाउ वरीड। व्हाट इज द क्वेश्चन रनिंग इन हिज माइंड? व्हाट विल बिकम ऑफ मी? अब मेरा क्या होगा? नाउ क्रिकेट इज सेइंग एंड थिंकिंग दैट मेरा क्या होगा? व्हाट विल बिकम ऑफ मी? क्योंकि मैंने कोई सेविंग नहीं की। At last, by starvation and famine made bold, जब भूख बहुत बढ़ गई, बर्दाश्त से बाहर हो गई, और कोई चीज खाने के लिए पास में नहीं थी, all dripping with wet and trembling with cold, और हमें गर्म कौन रखता है हमारे शरीर को? जो हमें ऊर्जावान कौन रखता है? जो खाना हम खाते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए, उसे हीट देने के लिए भीतर कुछ होगा नहीं, तो ऐसे में ठंड लगती है। तो अब क्रिकेट के साथ भी यही हो रहा है कि वो पूरी तरह से भीग रहा है और कमजोरी उसको महसूस हो रही है, ठंड से वो कांप रहा है। एंड ही सेट ऑफ टू ए माइल्स इन द एंड। तो अब आखिर में उसने डिसीजन किया कि मुझे किसी से हेल्प लेनी चाहिए, किसी से हेल्प मांगनी चाहिए, और इसके लिए वो चींटी के पास, इस एंट के पास जाता है, ताकि वो अपने आप को सेव कर सके, टू कीप हिम अलाइव। और किस बेस पे? उसे ये होप है, ये उम्मीद है कि वो कुछ उसे खाने के लिए या सर्वाइवल के लिए देगी। क्या क्या देगी? शेल्टर फ्रॉम रेन, बारिश से बचने के लिए शेल्टर दे देगी कि भाई बारिश आए तो मैं तुम्हारे यहां रह सकता हूं। एंड ए माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और पेट भर खाना दे देगी, अनाज दे देगी। ही विश्ड ओनली टू बोरो, इस समय उसकी एक ही इच्छा है कि कहीं से उसे उधार मिल जाए,
मदद मिल जाए, सहायता मिले। और इस सहायता को अपने मन में वो सोचता है कि he would repay it tomorrow, आज वो लेगा, जब अनुकूल वक्त आएगा तो वापस कर देगा, he will return it. If not, और यदि उसे ये मदद नहीं मिलती, he must die of starvation and sorrow, तो वो भूख से मर जाएगा। तो मदद उसे जरूर चाहिए, he need help in a very very hard time। लेकिन अब देखते ये हैं स्टूडेंट कि क्या ये एंट इसकी हेल्प करती है या कुछ और होता है। तो सेज द एंट टू द क्रिकेट, अब क्या कहती है ये चींटी इसको, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बहुत पोलाइटली इन अ वेरी जेंटल मैनर वो बात करती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी सेवक हूं, दोस्त हूं, जो चाहिए, बट we ants never borrow, we ants never lend। लेकिन एक हमारा सिद्धांत है, मजबूरी है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, चींटी कहती है बड़े ही डिप्लोमेटिक वे में, आई एम रेडी टू हेल्प यू, बट प्रॉब्लम इज दैट वी इन आवर कम्युनिटी, हमारे समुदाय में एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है कि ना तो हम उधार लेते हैं और ना उधार देते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? When the weather was warm, जब मौसम अच्छा था, फेवरेबल था, अनुकूल था, उस समय तुमने कुछ इकट्ठा नहीं किया? Told the cricket, no। तो आंसर क्या दिया इस क्रिकेट ने? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं। क्यों नहीं किया? He tell the reason, कारण बताता है कि my heart was so light, उस समय मैं इतना हल्का महसूस कर रहा था, मेरे दिल में खुशी थी और मैं परेशान भी नहीं था, तो ध्यान ही नहीं गया मेरा कि कल को जरूरत पड़ सकती है, सब कुछ उपलब्ध था मेरे पास, एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन सराउंडिंग, आसपास सब मौजूद था। तो मैंने अपने समय को कैसे बिताया? आई सैंग डे एंड नाइट, बस दिन रात मैं गाता रहा, नाचता रहा। फॉर ऑल नेचर लुक्ड के, क्योंकि सारी प्रकृति में प्रसन्नता दिखरी हुई थी, सुंदरता थी, प्रकृति इतनी अच्छी थी, इतनी मनमोहक थी उस वक्त कि मुझे और कुछ नहीं सूझा, मैंने बस खाया पिया और एंजॉय किया। यू सैंग, सर यू से, तो चींटी ने कहा, आपने कहा कि आप गाते रहे, गो देन एंड डांस द विंटर अवे, तो उस समय आप गाते रहे, तो अभी आप क्या करें? नाउ द एंट इज टोंटिंग, ओके, द एंट इज टोंटिंग, वो टोंट कर रही है, इन अ सार्काज्म, व्यंग्य की भाषा में मजाक उड़ा रही है, ओके, मोकिंग द क्रिकेट, द एंट इज मोकिंग द क्रिकेट। तो कहा उसने, चींटी ने, कि जाइए अब और अब जाके सारी सर्दी नाचिए, गर्मी भर तो आप गाते रहे, अब सर्दी भर आप आराम से नृत्य कीजिए। दस एंडिंग, ये कहानी यहां समाप्त हो जाती है कि एक क्रिकेट, उसने अच्छे मौसम में सिर्फ मस्ती की, कुछ कलेक्ट नहीं किया, जब सर्दी आई तो अपने बारे में वो चिंतित हो गया, अब मेरा क्या होगा, मेरे पास कुछ है नहीं। मदद के लिए वो चींटी के पास गया, इस उम्मीद में चींटी उसकी मदद करेगी, लेकिन चींटी ने बहुत ही विनम्रता से, बड़ी ही शालीनता से उसे अपनी मजबूरी बता दी और सीधा जवाब दे दिया कि तब आपने गाना गाया, अब आप आराम से नाचिए। उसका मजाक बनाया, उस पर टोंट किया, यह कहानी समाप्त हो जाए। अब he hastily lifted the wicket, उसने जल्दी से अपने कदम उठाए, and out of the door turned the poor little cricket, और उस बेचारे क्रिकेट को दरवाजे के बाहर कर दिया कि मेरे यहां तुम्हारे लिए ना शेल्टर है ना फूड है। अब कवि कहता है, फोक कॉल दिस फेबल, लोग कहते हैं कि ये एक लोक कथा है, अ फोक स्टोरी, एक फोक स्टोरी है, फोक टेल है, फेबल है इसके बारे में, लेकिन आई विल वारंट इट ट्रू, और कवि कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये सच है, शायद ऐसा हुआ होगा। पशु पक्षियों के बीच ये कहानियां जो बनाई गई हैं, तो ये कहानी बनाई गई, लेकिन एक्चुअल में शायद कहीं किसी इंसान के बीच समाज में ऐसा हुआ होगा और उसको लेके ये कहानी
शायद बना दी गई। यानी ये इमेजिनरी स्टोरी नहीं है, ये रियल स्टोरी है जिसको ऐसे सिंबॉलिक वे में रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो पोएट इज सेइंग दैट लोग इसको फेबल कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये फेबल नहीं है, ये एक सच्चाई है, हकीकत है। और क्यों मुझे ऐसा लगता है? बिकॉज सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2। क्योंकि जो 4 leg क्रिकेट है वो तो चलो होते हैं, देखे हैं, लेकिन मैंने सोसाइटी में, समाज में ऐसे 2 पैरों वाले क्रिकेट को भी देखा है। ऐसे 2 पैरों वाले भी बहुत सारे लोग हैं जो इस क्रिकेट की तरह ही जीवन जीते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को नहीं समझते हैं और अपने जीने की तैयारी अच्छे से नहीं करते हैं और अपना आधार नहीं बनाते हैं, अपना बेस, अपनी जड़ें मजबूत नहीं करते हैं। और उस कंडीशन में उन्हें औरों पर निर्भर होना पड़ता है अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए। दूसरों पर उन्हें निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट में अगर किसी व्यक्ति का कोई बेस, कोई रूट्स नहीं है, उसने नहीं बनाया या फिर किसी वजह से वो नहीं बना, तो उस कंडीशन में उसे दूसरों की मदद लेनी होती है। स्टूडेंट, यहाँ मैं एक और बात आपसे कहना चाहूंगा कि मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है। इस स्टोरी का ये मॉरल नहीं है कि आपको मदद नहीं मांगनी चाहिए। कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान अपने सभी कार्य खुद नहीं कर सकता है। अपना सर्वाइवल कोई भी पर्सन अकेले अपने बूते नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। उसे किन्हीं बातों के लिए दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है, दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है। बट जो स्टोरी का मॉरल है, मैसेज है, वो ये है कि अगर हम अपनी लाइफ को लेके केयरलेस हैं, इरेस्पॉन्सिबल हैं, गैर जिम्मेदार हैं, लापरवाह हैं, केयरलेस हैं, उस कंडीशन में अगर हमें दूसरों पर निर्भर होना पड़े, डिपेंड होना पड़े, वो गलत। दूसरों से हेल्प मांगना में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दूसरों का बोझ बनना, दूसरों पर अपना पूरा बोझ डालना, दूसरों पर डिपेंड हो जाना अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी लाइफ के लिए, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड दैट इज नॉट एक्सेप्टेड एनीवे। दिस इज द moral and message of the poem. So here the explanation is completed here, and I hope that you must have got the point. You must have understood the content of the poem, the central idea of the poem. So students, this is very inspiring and guiding poem for you, for the students, for the junior students. You are the beginning, in the beginning stage of the teenage. So poems are for enjoyment and as well as for message and moral. So thank you very much. And now the homework is that you learn the poem, and on the basis of your listening of the content and the explanation, please try to give the answer to the question which is given in the exercise. Thank you.